Let's improve English. मैं उसके दिल में एक अच्छी छाप छोड़ना चाहता हूँ. तुमने उसके दिल में एक बुरी छाप छोड़ दी है. Someone left a comment below one of my videos and asked me how to say these things in English. I'm going to tell you how to translate these sentences into English at the end of this video. If you want to know how to say these things in English, make sure to watch this video till the end. By the time you reach near the end of the video, you'll have learned a lot of other things, a lot of other translations. So friends, let's get started. तुझे क्या है? जब हम किसी को बोलना चाहते हैं कि तुझे इससे क्या मतलब है, तुझे क्या फ़र्क पड़ता है, तुझे क्या है, हम इंग्लिश में कह सकते हैं What's it to you? What's it to you? What's it to you? इस तरह के कुछ सेंटेंसेस के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं. आपको पता चलेगा कि इस तरह की बातों को हम इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं. इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं What does it matter to you? What does it matter to you? तुझे इससे क्या है, तुझे क्या है, What's it to you? हाँ मैं फेल हो गया, इससे तुम्हें क्या है? हाँ हो गया मैं फेल, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है इससे? Yes I failed, What's it to you? Yes I failed, What's it to you? What does it matter to you? What does it matter to you? It also has the same meaning. What does it matter to you? What's it to you? What does it have to do with you? Or what has it got to do with you? What has it got to do with you? मतलब इससे तुझे क्या है, तुझे क्या फ़र्क पड़ता है? Yes I failed, What's it to you? What does it matter to you? What does it have to do with you? Or what has it got to do with you? मैं कितना कमाता हूँ, इससे उसे क्या मतलब है, इससे उसे क्या मतलब है, मैं उसे क्यों बताऊँ? How much do I earn? What's it to him? How much do I earn? What's it to him? हमें लगेगा कि हमें ऐसे बनाना है, मैं कितना कमाता हूँ, लेकिन अगर ऐसे बोलेंगे How much do I earn? इसका तो मतलब है हम पूछ रहे हैं कि मैं कितने कमाता हूँ. इस तरीके से ये सेंटेंस सही से फ्रेम नहीं हुआ. हमें कहना चाहिए What's it to him? How much I earn? What's it to him? How much I earn? What's it to him? What I do? मैं क्या करता हूँ, उससे उसे क्या मतलब है. What's it to him? How much I earn? मैं कितना कमाता हूँ, इससे उसे क्या मतलब है. How much money I earn has nothing to do with him. This is another way to say the same thing. How much money I earn has nothing to do with him. If A has nothing to do with B, it means A is not related to B and A does not have any business with B. So A doesn't have anything to do with B. So how much money I earn has nothing to do with him. We can even change the order and we can just say he has nothing to do with how much I earn. He has nothing to do with how much I earn. करने दो उसे अपने मन की, तुम्हें क्या है, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, करने दो उसे अपने मन की. Let him do what he wants to do. What's it to you? Let him do what he wants to do. What's it to you? Another way to say the same thing is allow him to do what he's willing to do. What does it matter to you? Allow him to do what he's willing to do. What does it matter to you? What does it matter to you? How does it concern you? You don't have anything to do with that. मैं क्या खाता हूँ, क्या पीता हूँ, इससे तुम्हें क्या है? What's it to you what I eat and drink? What's it to you what I eat and drink? We can also say, what do you have to do with what I eat and drink? मैं उससे जैसे चाहूँ वैसे बात करूँगा, इससे तुम्हें क्या है? I'll talk to him however I want. What's it to you? However I want. What's it to you? मतलब जैसे मैं चाहता हूँ उसी तरह से बात करूँगा. What's it to you? How does it concern you? What does it matter to you? What does it matter to you? यहाँ किचन में कुश्ती मत लड़ो, तोड़ ताड़ दोगे नहीं तो कुछ ना कुछ. थोड़ा सा अलग टाइप का सेंटेंस आ गया. यहाँ कुश्ती मत करो. जैसे कभी कभी घर में आपस में खेल में ऐसे खेल खेलते हैं ना, आपस में खेलते हैं, लड़ते हैं, लड़ने वाला खेल खेलते हैं, कुश्ती सी लड़ते हैं घर में, तो हम ऐसे कह देते हैं यहाँ किचन में कुश्ती मत लड़ो, तोड़ ताड़ दोगे नहीं तो कुछ ना कुछ. इंग्लिश में कह सकते हैं डोंट रफ हाउस इन द किचन और यू माइट एंड अप ब्रेकिंग समथिंग. डोंट रफ हाउस. Rough house. If you rough house, it means you fight in a fun way. Don't rough house in the kitchen or you might end up breaking something. If you end up doing something, it means you do it in the end. You were doing something and in the end, you just did it. So you ended up doing it. Stop roughhousing in the living room. Another example of the same word. Stop roughhousing in the living room. Now let's see how to make the sentences that I just mentioned in the beginning of the video. Here they are. मैं उसके दिल में एक अच्छी छाप छोड़ना चाहता हूँ. इसको कहने का मतलब यही है ना कि मैं चाहता हूँ कि वो मुझे पसंद कर ले, उसके दिल में मेरे लिए इज्जत बढ़ जाए, उसके दिल में मैं अच्छी छाप छोड़ना चाहता हूँ. तो मतलब हमें वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन नहीं करना होता है, बल्कि हमें समझना होता है हम कहना क्या चाह रहे हैं.
जब हम ऐसे बोलते हैं तो हम कहना चाहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि वो मुझे पसंद करने लगे, उसे मैं प्यारा लगने लगूँ, उसके दिल में मैं एक अच्छी छाप छोड़ना चाहता हूँ। कैसे कह सकते हैं? I wanna make a good impression on him. If you make a good impression on someone, it means you do something that that person starts liking you. That person starts supporting you, respecting you. किसी की नज़रों में अच्छा बन जाना, to be in someone's good books. It means to make a good impression on someone. किसी के दिल में अच्छी छाप छोड़ देना, अपना एक अच्छा इंप्रेशन बना देना। तो ये सबसे कॉमन वे है इस बात को कहने का। हालांकि और भी तरीकों से हम बोल सकते हैं। I wanna leave a lasting impression on him. I wanna leave a lasting impression on him. यानी मैं उस पर एक लास्टिंग इम्प्रेशन लीव करना चाहता हूँ। ऐसा इम्प्रेशन, एक ऐसा इफेक्ट कि जो लंबे टाइम तक रहे, अच्छी छाप छोड़ना चाहता हूँ मैं। I want to endear myself to him. I want to endear myself to him. If you endear yourself to someone, it means you do something which leads that person to like you or support you, respect you, etc. I want to endear myself to him. मतलब मैं उसका प्यारा बनना चाहता हूँ, मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ कि उसके लिए मैं प्यारा बन जाऊँ, वो मुझे पसंद करने लगे, अच्छी छाप छोड़ना चाहता हूँ। बिल्कुल उसी टाइप का मीनिंग है। I want to find a way into his heart. उसके दिल में एक जगह ढूंढना चाहता हूँ। एक ही बात होती है लेकिन उसको कहने के अलग अलग तरीके होते हैं। I want to make a special place in his heart. उसके दिल में एक खास जगह बनाना चाहता हूँ। कुल मिला के मतलब यही है कि उसके दिल में एक अच्छी छाप छोड़ना चाहता हूँ। तो आप शायद समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हमें बहुत बार ऐसा लगता है कि ये हिंदी का सेंटेंस तो थोड़ा मुश्किल सा लग रहा है, इंग्लिश में इसके लिए क्या कहें। हूबहू बिल्कुल उसी जैसा एकदम सेम वर्ड मिलना हमेशा मुमकिन नहीं है। हमें ये सोचना है कि हम उससे क्या मीनिंग कन्वे करना चाहते हैं, क्या मैसेज हम बताना चाहते हैं, क्या मैसेज एक्सप्रेस करना चाहते हैं, और उसे एक्सप्रेस करने के लिए हम इंग्लिश के कौन से वर्ड्स, इडियम्स, फ्रेजेस का यूज़ कर सकते हैं जो इक्विवेलेंट मीनिंग रखते हैं, तो उनका हम यूज़ कर लेते हैं। इट्स सिंपल इजंट इट। तुमने उसके दिल में एक बुरी छाप छोड़ दी है, तो इसकी जब हमें ऑपोजिट बात बोलनी है कि किसी के दिल में एक बुरी छाप छोड़ देना, यानी कुछ ऐसा कर देना कि वो आपको अब नापसंद करने लगे। You have made a bad impression on him. बिल्कुल good impression था, उसका ऑपोजिट हो गया bad impression. You've made a bad impression on him. उसके ऊपर, उसके दिल पर आपने एक बुरी छाप छोड़ दी है, मतलब अब वो आपको इतना पसंद नहीं करता। You have left a bad impression in his heart. You have left a bad impression in his heart or in his mind. उसके दिल में कहीं ना कहीं अब आपके लिए इज्जत कम है। या हम कह सकते हैं You have made him dislike you. You have made him dislike you. आपने कुछ ऐसा किया है कि अब वो आपको डिसलाइक करता है। You have made him have a bad memory of you in his heart. You have made him have a bad memory of you in his heart. आपने कुछ ऐसा किया है कि अब वो अपने मन में आपके लिए एक खराब याद रखेगा। कहने का मतलब है कि आपको बुरा सोचेगा। You've made a bad impression on someone. I hope I've been clear and you've understood each and everything that I mentioned in this video pretty clearly. आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। इसी तरह से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं अगले वीडियो लेसन में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। टेक केयर एंड बाय बाय।